Hello everyone. Students, today we are going to continue our previous presentation. Previous session ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ we have started various identities, that is various laws ਆਪਾਂ start ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ laws discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, that is independent law, complementary law, involution law and ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ commutative law, associative law, distributive law and absorption law. So let's start with the commutative law. ਸੋ ਇਹ ਲਾਅ ਵੀ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਅਸ ਹੁੰਦੇ commutative law ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ this law state, ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ the order, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, order in which the variables are odd makes no difference। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਸ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ y ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, y ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, x ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਆਰਡਰ in which the variables are odd makes no difference। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ y ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਮੂਟੇਟਿਵ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਬਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ x ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਔਰ y ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਵੀ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ y ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ x ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਰਡਰ ਮੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਸੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਆਰਡਰ ਇਨ ਵਿਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਰ ਆਡ ਮੇਕਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ y ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ। ਐਟ x ਐਂਡ y ਆਰ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, 0 0 0 1 1 0 ਐਂਡ 1 1। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। अगर आप x प्लस वाई की गल करिए, दैट इज 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1, देन 1 प्लस 1 इज 1। सिमिलरली अगर y प्लस एक्स लिखिए, दैट इज 0 प्लस 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 इज 1। देखो x प्लस वाई हले तामी अपने को वैल्यू आई ये वैल्यू आ रही है, अगर y प्लस एक्स ले ली तामी वैल्यू अपने को यही आ रही है। डैट मीनस अगर वेरीएबल में आप आगे पीछे भी लिख देंगे, चाहे और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पएगा, चाहे x प्लस वाई लिख लो या आप y प्लस एक्स लिख लीए। पहला लॉ ये कह रहा है, हम ये करते और ऑपरेशन, दूजा की होएगा अपने को एंड ऑपरेशन। सो की कह रहा है, द ऑर्डर इन विच द वेरीएबल्स आर एंडिड मेक्स नो डिफरेंस। कहना कि ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ x ਡਾਟ y ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ y ਡਾਟ x ਲਿਖ ਲਓ। x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स है, दोनों का अपने को आउटपुट की आएगी अपने को सेम आएगी। ठीक है, सो ऑलवेज कीप इन माइंड जो भी अपने को कॉम्यूटेटिव लॉ की गल करांगे उत्थे आप ऑर्डर की गल करांगे। ठीक है, ऑर्डर मेक्स, ठीक है, नो सेंस। ठीक है, आउटपुट को अपने को कोई भी फर्क नहीं आएगा। पहले जब आप सारे वेरीएबल और हो रहे हैं और दूजे लॉ में सारे वेरीएबल की हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। ठीक है, चाहे एक्स डॉट वाई लिख लो, चाहे वाई डॉट एक्स लिख लो। सो ये अपने को है एक्स वाई आप इनपुट वेरीएबल्स है, और ऑपरेशन केड़ा हो रहा है मेरे को एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो देन एंड गेट लगाता। सो की बन गया एक्स इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। वाई ऊपर लिखता, एक्स नीचे लिखता, तामी आउटपुट मेरे को वाई डॉट एक्स आ रही है। तो दोनों के कोई भी डिफरेंस नहीं है, आउटपुट में अपने को दोनों की सेम आई। टेबल च आप देख सकते हैं, टेबल आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो इतने एक्स डॉट वाई 0 0 0 1 आ रहा है, और इतने मेरे को है 0 0 1 है। सो मेरे को चाहे एक्स डॉट वाई लिख लो, चाहे वाई डॉट एक्स लिख लो, आउटपुट से मेरे को कोई भी फर्क नहीं पाएगा। ठीक है, सो ऑर्डर मेक्स नो डिफरेंस, ऑर्डर के नाल कोई भी डिफरेंस आउटपुट से नहीं होएगा, तो अपने को रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। दैट इज नोन एज अ कॉम्यूटेटिव। आई रिपीट अगेन, ये दो लॉज होंगे, वन फॉर अ और ऑपरेशन एंड सैकेंड फॉर अ एंड ऑपरेशन। ठीक है, अगर आप और ऑपरेशन की गल करिए, सारे वेरीएबल्स आपस एंड होंगे। ठीक है, ऑर्डर कोई मायने रखता। अगर आप दूसरा ऑपरेशन की गल करिए, सारे वेरीएबल मेरे को होंगे एंड ऑपरेशन होएगा। ठीक है, ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखेगा, डैट इज नोन एज अ कॉम्यूटेटिव लॉ। सो इन्हों याद रखना है। ठीक है, नैक्सट है एसोसिएटिव लॉ। सो की कह रहा है, ये भी दो लॉज होंगे,
एक और होएगा, एक अपने कोल की होएगा एंड होएगा। ਵੈਨ ਔਰਿੰਗ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟ ਮੀਨ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ x ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉਹ x ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਕੀ ਆ ਗਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਸ ਔਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫॉर्म ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है, देन ग्रुपिंग का कोई भी मायने नहीं रखेगी। ठीक है, लिखे द रिजल्ट इज सेम रिगार्डलैस ऑफ द ग्रुपिंग, चाहे तुसी y प्लस z लिख लो, चाहे तुसी x प्लस y लिख लो, चाहे तुसी x प्लस z लिख लो। ठीक है, ग्रुप बना लो, तो दैन ग्रुप का अपने को आउटपुट के उपर कोई भी फर्क नहीं पएगा। तो देख सकते हो इतने मैं लिखा x प्लस वाई प्लस, एक आ ग्रुप बन गया, दूजी बारी ग्रुप की बनाता मैं x प्लस वाई प्लस z। पहला वाई जैड ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਈ ਐਕਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਈ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਦੀ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਨ ਔਰਿੰਗ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਰਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ, रिजल्ट अपने को सेम आएगा रिगार्डलैस ऑफ अ ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल, चाहे जेडे मर्जी वेरिएबल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा होएगा। ठीक है, सो आप अगर सर्किट बनाइए, दैन वाई प्लस जैड है, सो और दोनों ऑपरेशन केड़ा हो रहा, और गेट लग गया। सो की बन गया मेरे को वाई प्लस जैड, और नाल मेरे को की है एक्स इनपुट है। ठीक है, और वो अपने को केड़ा ऑपरेशन हो रहा एक्स एंड वाई जैड दे विच और ऑपरेशन हो रहा है, तो आप लगाता उत्थे और गेट लगाता, की बन गया मेरे को एक्स प्लस वाई जैड विच इज़ इक्वल टू, हम जो x प्लस वाई है, सो दोनों ऑपरेशन कि और हो रहा है x प्लस वाई लिखता, दैन z गला है, दैन कि x प्लस वाई ना की हो रहा और ऑपरेशन हो रहा, मैं और गेट लगाता। ये आप कर चुके हैं, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज़ क्लीयर होएगी। सो की बन गया x प्लस वाई प्लस z, चाहे आप इक्वेशन इस फॉर्म के लिख लीए, चाहे आप इस फॉर्म के लिख लीए, अपने को रिजल्ट के उपर कोई भी फर्क नहीं पएगा। ठीक है, आलवेज कीप इन माइंड, जो भी एसोसिएटिव लॉ की गल करांगे उत्थे ਆਪਾਂ ग्रुपिंग की गल करांगे, वेरीएबल जिहड़े मर्जी ग्रुप में पार्टिसिपेट करे, लेकिन रिजल्ट के उपर कोई भी फर्क नहीं पएगा, चाहे वेरीएबल एक ग्रुप के है, चाहे वेरीएबल सेम वेरीएबल किसी होर ग्रुप के पार्टिसिपेट कर रहे। ठीक है, बट की हो रहा अपने को पहला लॉ सारे और ऑपरेशन हो रहे हैं, दूसरे लॉ के सारे अपने को एंड ऑपरेशन होंगे। अगर आप टेबल ना वेरीफाई करना देख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जैड, एक्स प्लस ब्रैकेट वाई प्लस जैड और आ वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, दैन एक्स प्लस वाई प्लस जैड और आ वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, एरी वैल्यू और एरी वैल्यू मेरे को है सेम, दिस इज 0 0 1 द 1 1 द 1 1 द 1 एंड सो ऑन। और एक टेबल कितना बनया आप डिस्कस कर चुके हैं, 3 वेरीएबल्स एक्स वाई जैड वेरीएबल्स ले ले। सो पहले अपन वाई जैड चाहिए से, आप वाई जैड ले लिया, फिर अपन एक्स ना की करता और करता, अपने को वाला कॉलम बन गया। नैक्सट अपन एक्स प्लस वाई चाहिए, एक्स प्लस वाई कॉलम बना लिया, नाल अपन जैड ना और चाहिए तो अपन नाल जैड ना और कर लिया। तो ये देख सकते हो कि चाहे आप एक्स प्लस वाई प्लस जैड का ग्रुप बना लीए, वाई प्लस जैड का, चाहे आप एक्स प्लस वाई का ग्रुप बना लीए, आउटपुट के उपर कोई भी फर्क नहीं पएगा। डैट इज नोन एज अ एसोसिएटिव लॉ। सैकेंड लॉ की कह रहा है, वैन एडिंग अ सैवरल वेरीएबल्स, हुण की सीगा पहला अपने को ऑरिंग सीगा, हुण की हो गया अपने को एंडिंग हो गया, डैट मीन सारा सेम रहेगा। ठीक है, बट ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, जिथे अपने को प्लस सी उत्थे क्या आ जाएगा मेरे को डॉट आ जाएगा। द रिजल्ट इज सेम रिगार्डलैस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द वेरीएबल। ठीक है, रिजल्ट अपने को सेम आएगा, चाहे जो मर्जी वेरीएबल जो मर्जी ग्रुप के की करे पार्टिसिपेट करे, चाहे तुम एक्स डॉट ब्रैकेट वाई डॉट जैड लिख लो, या तुम एक्स डॉट वाई में ब्रैकेट लिख लो और जैड बना लो, चाहे आ ग्रुप इदा लिख लो, चाहे इदा लिख लो। दिस इज अनदर ग्रुप हो गया एक्स वाई डॉट वाई, दूजा ग्रुप की हो गया वाई डॉट जैड। ठीक है, जिथे को आ ग्रुप आ बनाया, इतने अपने को आ वाला ग्रुप बनया है। सो ग्रुपिंग कहना कोई भी मान्य नहीं रखती, रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पएगा। सो दोनों चो देखो वाई और जैड ऑपरेशन किहड़ा परफॉर्म हो रहा है, एंड ऑपरेशन, सो एंड गेट लगाता, की बन गया वाई जैड। सो ए वाई जैड जो ऑपरेशन है एक्स नाल किहड़ा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, अगेन एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, तो आप लगाता है एंड गेट लगाता। सो आउटपुट भी बन गई अपने को एक्स डॉट वाई डॉट जैड विच इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, क्लीयर, डॉट में ना देखो वन इज द सेम थिंग, दैन जैड ना अगेन और एंड हो रहा है और हो रहा है, दैन अगे की लगाता फिर एंड गेट लगाता। सो की बन गया एक्स वाई, चाहे आप इस तरीके ना लिख लीए, चाहे इस तरीके ना लिख लीए, रिजल्ट के उपर कोई भी फर्क नहीं पएगा। बट एक गल याद रखनी है, चाहे आप एसोसिएटिव लॉ करें, देखो ध्यान देना ये सारे ही एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे, मिक्सचर नहीं होएगा, याद रखना कन्फ्यूज नहीं होए ना। और प्रीवियस देखो सारे और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे। ठीक है,
ਜਾਂ ਔਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਕਸਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਰੂਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲਾਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੇਬਲ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ x ਬ੍ਰੈਕਟ YZ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਕਟ XY ਬ੍ਰੈਕਟ Z ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਹੈ 1, ਦੈਨ ਆਲ ਆਰ 0, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਲ ਆਰ 0। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੇਕਸ ਅ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾਅ ਡੈਟ ਆਰਡਰ ਮੇਕਸ ਅ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਔਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਕਸਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਲਾਅ ਸਟੇਟ, ਦੋ ਲਾਅਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਔਰਿੰਗ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਔਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਵਿਦ ਦਾ ਐਕਸ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ, ਔਰਿੰਗ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਸੈਵਰਲ मीन्स एक तो ज़्यादा वेरिएबल लाइक दिस, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸੋ ਐਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਟੂ ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡਿੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿਦ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ x ਡਾਟ y ਦੈਨ x ਡਾਟ z ਐਂਡ ਦੈਨ ਔਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਲਗਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਦਿਸ वन इज इक्वल टू दिस वन। अगर नॉर्मल ब्रैकेट खोलनी है तो की बनेगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड, वही चीज़ उत्ते ओपन की वही यूज़ की गई है, डैट इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव। आई रिपीट अगेन, ऑरिंग अ सैवरल वेरीएबल्स, जिन्ने भी वेरीएबल्स है सारे ਆਪਾਂ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਦੇ x ਡਾਟ y ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿ z ਹੈ, x ਡਾਟ z ਹੋ। ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਚ ਔਰਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ x ਡਾਟ y ਪਲੱਸ x ਡਾਟ z ਬਣ ਜਾਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, वन इज द सेम थिंग, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਵਰਲ ਔਰਿੰਗ ਅ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਂਡ ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦ ਦ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, क्लियर। सो यह सर्किट की बनेगा, तो ध्यान रखो y प्लस जेड है, सो y इनपुट दे दी, z इनपुट के ब्रैकेट से एक अपने ग्रुप बनया, सो रिकॉर्डिंग मैं सर्किट बना रहा और गेट यूज़ कर लिया। सो वाई जेड बन गया, दूजा की चाहिए मैंने x ऑपरेशन केड़ा हो रहा है मेरे को एंड ऑपरेशन। तो तुम देख सकते हो कि ये एंड ऑपरेशन एंड गेट भी यूज़ हो रहा है एज वेल एज और प्रीवियस या तो एंड गेट यूज़ हो रहा सी या और गेट यूज़ हो रहा सी। सो आउटपुट की बन गई मेरे को x डॉट वाई प्लस जेड। सिमिलरली अगर यदि गल करिए, ठीक है, एक्स डॉट वाई चाहिए है तो और की लगाता आप एंड गेट लगाता, की बन गया एक्स वाई। दैन की चाहिए मैं एक्स जैड, एक्स अपने को अवेलेबल है, इतने बेसिकली आर्क होनी चाहिए। अगर आप डायरैक्ट लाइन लगाने हैं वह मतलब ये होंगे कि यदा इन्ना कनैक्शन है, बट मैं कलर चेंज करता है तो वह मतलब ये होएगा कि जो ए वाला कनैक्शन है ये इधर जा रहा है, ये बाई ने कोई भी लेना देना नहीं है। सो एक्स इतों ले लिया, दैन जैड आप नवी इनपुट ले ली है, सो और की सॉरी इतने एंड गेट लगना सी, वेट, ओके लाइक दिस।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ x ਡਾਟ y ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਗੇਟ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ x ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z, x ਇੰਟੂ z ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਵਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਗੇਟ ਲਗਾਤਾ। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, x ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਇਨਪੁਟ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਜ਼ੈਡ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਗੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾਅ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਔਰ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਗੇਟ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਔਰ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲਾਅ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਗੇਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਐਂਡ ਔਰ ਦੋ ਔਰ ਗੇਟ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਅ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਐਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ x ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਐਂਡ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ x ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਜ਼ੈਡ ਲਿਖ ਲਓ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਦਾ ਪਲੱਸ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਡਾਟ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਐਂਡਿੰਗ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡਿੰਗ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਔਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਔਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰਿੰਗ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿਦ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਡਾਟ ਲਗਾਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ। ਸੋ ਦਿਸ ਲਾਅ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਐਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡ ਆ ਐਂਡ ਗੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਆ ਐਂਡ ਗੇਟ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਡਾਟ ਜ਼ੈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਂਡ ਗੇਟ ਲਗਾਤਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰਿੰਗ ਅ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਸੌਰੀ ਐਂਡਿੰਗ ਅ ਸੈਵਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਂਡ ਔਰਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ x ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਔਰ ਗੇਟ ਲਗਾਤਾ। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਕਲੀਅਰ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਔਰ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, x ਪਲੱਸ ਵਾਈ। ਦੈਨ x ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, x ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, z ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, x ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਗੇਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਗੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਇੱਕ ਹੋਰ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਨਪੁਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਇੰਟੂ ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਡਾਟ x ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੇਮ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਡਾਟ ਜ਼ੈਡ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ 0 0 ਹੈ, ਦੈਨ 1 1 ਹੈ, ਦੈਨ x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਡਾਟ x ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, 1 1 ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਕਾਲਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਟੂ ਦਿਸ ਕਾਲਮ, that is known as a distributive law, ठीक है। टेबल कितना बने आप प्रीवियस लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक्स वाई 3 वेरिएबल एज इनपुट ਲੈ ਲਏ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वाई z ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, वाई z ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वाई z ਪਲੱਸ x ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, वाई z ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਸ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਪਲੱਸ y ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, x ਪਲੱਸ y ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੈਨ x ਪਲੱਸ z ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, x ਪਲੱਸ z ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਮਲਟੀ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ को देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। डैट मीन चाहे तुम एक्स प्लस वाई इंटू जेड लिख लो, चाहे तुम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड लिख लो, वन इज द सेम थिंग। देखते हो जस्ट ऑपरेशन चेंज होया, ठीक है। पहले लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਲਾ। ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ। ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਮੀਨਸ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। देखो आउटपुट के उपर अपने को y जो एबजॉर्ब हो गया, खत्म हो गया, जिसे आप एबजॉर्बशन ला कहते हैं। सो कहता कि जो भी अपने को x प्लस एक्स वाई होएगा वो जगह पर आप x लिख सकते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड। क्लीयर। तो ध्यान देखो x है, देन मेरे को की है एक्स वाई है। सो x इतों ले लिया, इतने मैं एंड गेट लिया। सो सर्किट बना के दस रहा है कि सर्किट बनना है। सो की बन गया एक्स वाई, दोनों के ऑपरेशन कि परफॉर्म हो रहा है मेरे को और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सो की लगाता उत्थे मैं और गेट लगाता। सो की बन गया एक्स प्लस एक्स वाई। क्लीयर। ये अपने को लॉ हो गया। देखो ये और हो रहा है और इतने मेरे को सॉरी इतने मेरे को और हो रहा है, इतने मेरे को की हो रहा है एंड हो रहा है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि मेरा कोई वाई है अब्जॉर्ब हो गया, जिस करके नाम की लिखे आप अब्जॉर्प्शन लॉ। सो एक्स प्लस एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। दूसरा लॉ की बनेगा, जस्ट उसी ऑपरेशन चेंज कर दो। जित इतने प्लस है, इतने की लगाता डॉट, इतने मेरे को डॉट सी, इतने की लगाता प्लस लगाता, डेट इज आल्सो इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज आल्सो इज इक्वल टू की आएगा एक्स आएगा। सो तुम देख सकते हो कि ऑपरेशन चेंज कर देते, वेरीएबल मेरे को सेम है। प्लस का की लगाता, इतने डॉट आ गया, दैन अपने को इतने डॉट से इतने की लगाता मैं प्लस लगाता। चाहे आप क्वेश्चन इस तरीके लिख लिए, दैन आंसर अपने को एक्स आएगा। जे आप इस तरीके लिखते हैं तो आंसर अपने को आएगा एक्स आएगा, ठीक है। यह सर्किट इस तरीके बनेगा। एक्स प्लस वाई चाहिए है, सो एक्स प्लस वाई की बनेगा एक्स प्लस वाई। दैन मैनू की चाहिए नाल एक्स चाहिए है, एक्स आप इतों ले लिया, आपस ऑपरेशन कि परफॉर्म हो रहा एंड तो एंड गेट लगाता, ठीक है। सो की बन गया एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। देखो कि गेट चेंज हो गए, जिथे अपने को एंड से उत्थे अपने को और लग गया, जिथे अपने को और सी उत्थे अपने को लग गया एंड लग गया, ठीक है। अगर प्रूफ करना है पहले एक्स प्लस एक्स वाई इंटू एक्स। सो टेबल ना प्रूफ नहीं होएगा। सो टेबल ना भी कर सकते हो, आप नॉर्मल डायरैक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। देखो आप एक्स प्लस एक्स वाई है, ये देखो कॉमन की आ रहा, एक्स कॉमन आ रहा, एक्स आप बाहर कट लिया। सो पिछे की रह गया, जो एक्स बाहर कॉमन आ गया, इतने की रह गया वन, इतने की रह गया मेरे को प्लस वाई रह गया। क्लीयर। आई रिपीट अगेन, जो अपने को एक्सप्रैशन आ रहा है, अगे आप सारे एक्सप्रैशन इधर सॉल्व करने हैं। पहला चीज़ आप कॉमन लैन की कोशिश करें। इन्होंने जो कॉमन की आ रहा है एक्स, एक्स कॉमन रह गया, पिछे की रह गया तो एक्स कॉमन रह गया, पिछे की रह गया वन प्लस एक्स कॉमन आ गया, पिछे रह गया वाई। सो की बन गया वाई प्लस एक्स। और अपन पता है कि वाई एक्स प्लस वन या एक्स प्लस वाई लिख लिए इज इक्वल टू की होंगे वन। सो ये वन पुट करती, बिच की रह गया मेरे को एक्स रह गया। सो हैंस की हो गया, प्रूव हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू की होंगे है एक्स होंगे। जस्ट तो एक्स कॉमन कर लो, ठीक है। और तुम रूल पता होने चाहिए थे, मैं रूल लिख देता है, वाई प्लस एक्स लिख लो या वाई प्लस वन लिख लो या एक्स प्लस वन लिख लो, ठीक है। और हमेशा अपने को वन के बराबर होंगे है। आप ये पहले जो रूल से स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे, जिहदे देखा सी और दी एक इनपुट हमेशा वन रह रही सी, दूजा मेरे को आ रहा सी वेरीएबल आ रहा सी, आउटपुट हमेशा मेरे को वन रह रही सी। उत्थे मैं ये वाला रूल यूज़ किया, ठीक है। अगे जिन्ने भी आप सिंपलीफाई करांगे इदा रूल यूज़ होंगे। सो तुहानूं बार बार कह रहे हैं, तुहानूं सारे रूल्स लॉज टिप्स के उपर याद होने चाहिए है, दैन ही तुसीं एक्सप्रैशन सिंपलीफाई फॉर्म के लैके आ सकते हो, ठीक है। टेबल की बनेगा, देखो ध्यान नाल, जीरो एंड वाई दो वेरीएबल्स है, ये कंबीनेशनस बन गए। की चाहिए मैं एक्स वाई, सो एक्स वाई लिखता, डैट इज़ की बन गया मेरे को जीरो एक्स इंटू जीरो 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 वन इंटू जीरो जीरो वन इंटू वन, ठीक है। दैन की जो एक्स प्लस एक्स वाई दोनों ऐड करता। हम तुम देख रहे हो एक्स की वैल्यू जीरो, इतने भी जीरो, इतने भी जीरो है, इतने जीरो है, इतने भी जीरो है, इतने वन है, इतने भी वन है, इतने भी वन है और इतने भी वन है। सो टेबल के नाल भी आप प्रूफ कर सकते हैं। क्लीयर। टेबल ना प्रूफ भी कर सकते हैं और इस तरीके भी आप प्रूफ कर सकते हैं, बट हमें उत्थे लॉज पता, रूल्स पता होने चाहिए। क्लीयर। सिमिलरली देखो अपने को एक्स और एक्स प्लस वाई की हो गया मेरे को सेम हो गया। हम अगर आप ये प्रूफ करना है एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, इन्हू मल्टीप्लाई कर दो, की बन जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। और अपन एक्स की ले लिया, ये अपन पता है, इतने शॉर्ट एक स्किप मिस कर गया, एक्स इंटू एक्स की होंगे मेरे को एक्स होंगे, ऑलवेज कीप इन माइंड, आप रूल कर चुके हैं। एक्स इंटू एक्स की होंगे एक्स को की बन जाएगा मेरे को सेम आही बन जाएगा एक्स
प्लस एक्स वाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक्स कॉमन ਕੱਢ ਲਿਆ ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ कि 1 + y ਕੀ ਹੁੰਦਾ है 1 अगेन दिस इज इक्वल टू x क्लीयर हैंस की हो गया अपने को प्रूफ हो गया। टेबल जो देख सकते हो इतने 0 इतने भी 0 इतने भी 0 इतने 1 इतने भी 1 इतने 1 और इतने भी 1 ठीक है। दैट इज नोन एज अ एब्जॉर्प्शन लॉ जिथे भी अपने को एक वेरीएबल की होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा इस करके एब्जॉर्प्शन लॉ पे है। आउटपुट हमेशा की आएगी मेरे को एक्स आएगी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज आल्सो इज इक्वल टू एक्स क्लीयर दिस इज नोन एज अ एब्जॉर्प्शन लॉ ठीक है। अदर ਜਿਹੜੇ रूल्स ਹੈਗੇ ਆ अपने को ये भी रूल्स अपने को यूज़ होंगे की कह रहे अपने को अब्जॉर्प्शन लॉ नहीं यूज़ नहीं होंगे थे वेरीएबल अब्जॉर्ब नहीं होंगे वो आप यूज़ करांगे कहता कि अगर x प्लस एक्स बार वाई होएगा दैट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई रिपीट अगेन x प्लस एक्स बार वाई होएगा इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होएगा ऑलवेज कीप इन माइंड। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਰਕਿਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x प्लस एक्स बार वाई आ गया ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ x प्लस वाई ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਬਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x प्लस एक्स वाई ਸੀਗਾ ठीक है एब्जॉर्प्शन लॉ ਦੇ बट ये की आ गया एक्स के उपर बार आ गई है ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना जो बार आ जाएगी फिर आउटपुट एक्स प्लस वाई आएगी क्लीयर। सिमिलरली दूसरा लॉ की अपने को है रूल्स की है एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस वाई बार इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस मेरे को की आ जाएगा जेड आ जाएगा ऑलवेज कीप इन माइंड ठीक है। तुम प्रूफ किदा कर सकते देखो ये वाई कॉमन लै सकते हो अगर तुम ये वाई कॉमन लाओगे तो की बन जाएगा मेरे को इतने जेड प्लस सॉरी जेड कॉमन लाओगे तो की बन जाएगा वाई प्लस वाई बार बन जाएगा और वाई प्लस वाई बार मेरे को की होंगे 1 सो एक्स प्लस वाई प्लस मेरे को की बच जाएगा जेड बच जाएगा। तुम जोड़े ये है अपने इनू सर्किट विद हेल्प ऑफ अ टेबल इनू प्रूव करके देख सकते हो और यह सर्किट ड्रॉ करना है ये मैं तुहाडे ते कम छड्ड रहा ठीक है। सो बट ये रूल याद रखना है कि x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होएगा। अगर मेरे को 3 वेरीएबल्स आ जाते एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस वाई बार इंटू जेड आ गया तो दैन इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस की आ जाएगा जेड आ जाएगा ठीक है। तुम इनू टेबल के नाल की कर सकते हो प्रूफ कर सकते हो या तुम इन्हां चों चीज़ कॉमन लैके भी इनू सॉल्व कर सकते हो ठीक है। सो आपां सारे लॉ डिस्कस कर लिए है दैट इज इंटरमिटेंट लॉ कॉम्प्लीमेंटरी लॉ इन्वोल्यूशन लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज वेल एज अ एब्जॉर्प्शन लॉ। तुहानूं ये लॉ सारे टिप्स के उपर होने चाहिए और जिन्ने प्रीवियस आपां रूल्स और पोस्टुलेट डिस्कस किए हैं अगर तुहानूं ये सारे टिप्स के उपर होणगे दैन ही आपां कंपलैक्स बूलियन एक्सप्रैशन नूं सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर तुहाडे कोल कंसैप्ट क्लीयर नहीं होणगे तुहानूं लॉज नहीं पता होणगे तो दैन तुसीं किसी भी एक्सप्रैशन को सॉल्व नहीं कर सकते पेपर में क्वेश्चन कोई भी आ सकता है ठीक है। सो इनू कापी के उपर सारे जो 15-16 रूल्स है लॉज है ठीक है इन्हों सारे साइड पर लिख लेना और रोज़ इनू याद करना ठीक है। और तुहानूं पता होना चाहिए कि किहड़े लॉ के अंदर किहड़ा अपने को लॉ चलेगा किन्ने लॉज होंगे हैं कितने अपने को एक्स प्लस एक्स आ रहा है कितने अपने को एक्स प्लस एक्स वाई आ रहा है तुहानूं पता होना चाहिए किहड़े लॉ के अंदर किहड़ा अपने को आइडेंटिटीज़ आ रही है। सो इनू आपां वेरीअस आइडेंटिटीज़ भी कह सकते हैं ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आप सैशन इतने स्टॉप करते हैं। सो आप डिस्कस कर लिया है आप दैट इज़ अ वेरीअस आइडेंटिटीज। सो हुण तक आप डिस्कस कर चुके हैं बेसिक टर्म जिहदे वूलियन जैबरा वूलियन वेरीएबल वूलियन कॉन्सटेंट्स डिस्कस किए थे वूलियन एक्सप्रैशन डिस्कस किया ठीक है। उस तो बाद आप पोस्टुलेट डिस्कस कर चुके हैं 4 पोस्टुलेट डिस्कस कर चुके हैं उस तो बाद आप वेरीअस आइडेंटिटीज या लॉज या थ्योरम्स है आप डिस्कस कर चुके हैं। अज का सैशन आप इतने स्टॉप करते हैं नैक्सट सैशन के आप प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी एंड डी मॉर्गन थ्योरम डिस्कस करेंगे। टिल दैन थैंक यू वेरी मच।